A very good morning to all of you. Dear students, in my online class I have covered the topic that is projectile motion. Now in this video I am going to solve few questions based on the same topic. Now we are considering a case when a body is projected at an angle theta with the horizontal. Okay. Now our first problem is derive an expression for its horizontal range and determine the condition for the maximum horizontal range. तो अगर हम horizontal range की कंडीशन की बात करते हैं तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग कि हमने कंसिडर किया था an object is projected by making an angle theta from the horizontal. ये horizontal है. Now there must existing two components of the velocity. One is horizontal component which is equal to u cos theta. Another one is vertical component and this is equal to u sin theta. ये दो component होता है. Now while this projectile is projected, then this may be the trajectory of the projectile. Means this may be the path followed by the projectile. So if we consider that projectile is projected from this point and hits the ground at this point is M, and this is suppose P, this is H, and this distance, this horizontal distance is known as the range, and in this expression we are going to find the range only. So we know that from the second equation S is equal to ut plus half at square. S is equal to R because we want to calculate the value of R, and u is the horizontal component of the velocity, that is u cos theta. u किसके इक्वल है? u cos theta के इक्वल है. ठीक है. And acceleration is 0, as I have earlier told you that the projectile is in horizontal direction moving with a constant velocity. That is why its acceleration becomes 0. Now we are going to put these values here. R is equal to u cos theta. One thing more, that is t. It is capital T, time period, time of flight. Now substituting the value u cos theta into t plus half into 0 into t square, then R will be written as u cos theta into t, and we know that the time period is 2u sin theta upon g. This is the expression for the time period of the flight or the projectile. So we can put this value 2u sin theta upon g, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या हो गई? 0. u और u की मल्टीप्लाई हो गई u स्क्वायर ओके अपॉन जी. अब ये बचा 2 sin थीटा cos थीटा. ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है? sin 2 थीटा के. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं sin 2 थीटा. तो जो रेंज है उसका फार्मूला हमारा आ गया u स्क्वायर अपॉन जी, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी. दिस इज द वन थिंग. दूसरी बात इसमें कही है डिटरमाइन द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की कंडीशन भी डिटरमाइन करनी है. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है अगर हम कहें कि r जो है वो किसके इक्वल हो? r max के इक्वल हो. अगर r max के इक्वल हो तो जो ये sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा, इट मस्ट बी 1. ये 1 होना चाहिए. सही है. sin 2 थीटा 1 होगा का मतलब क्या हुआ? 1 किसकी वैल्यू होती है? sin 90 डिग्री की. While we compare them, so 2 theta is equal to of 90 degrees and the value of theta is of 45 degrees. तो ये हो गई कंडीशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. यानी किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर 45 डिग्री के एंगल से काटे तो वो सबसे ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा. ओके. अब ये वैल्यू जब इसमें पुट कर देते हैं तो वी कैन गेट
is equal to u square upon v. This is the maximum horizontal range. This is the expression for the maximum horizontal range. Now coming to the next question, and the next question is, prove that horizontal range of a projectile is same when fixed at an angle theta and 90 minus theta with the horizontal. यानी दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज कंप्लीटेड. अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन में कहा गया है, अगर एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया जाए तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम होगी. तो वी नो, तो दूसरा क्वेश्चन आप मेंशन कर लीजिएगा. व्हाइल अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, देन वी हैव टू प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स सेम. तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि दिस इज द प्रोजेक्टाइल विच इज प्रोजेक्टेड बाय एंगल थीटा. तो केस नंबर 1, when projectile is projected by at an angle थीटा, जब इसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक है. अब कहा गया है कि 90 माइनस थीटा से किया जाए, मींस केस नंबर 2 की बात करते हैं. केस नंबर 2 इज व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑफ 90 माइनस थीटा. तो हॉरिजॉन्टल रेंज को r डैश मान लेता हूं, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा अपॉन g. डन. तो अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g. साइन 180 माइनस थीटा वाले फार्मूले आपने पढ़ रखे होंगे, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g. तो व्हाट वी गॉट, इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या निकाल लिया, r डैश. यहाँ पे क्या था, r. क्या क्वेश्चन था कि ये प्रूव करें कि अगर किसी एंगल को 90 थीटा और 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करें, देन वी विल गेट द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज. एंड वी हैव प्रूव्ड कि पहले थीटा से जब इसे प्रोजेक्ट किया गया तो रेंज आ गई. जब 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया तो मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दिया, एंड वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. तो फाइनली व्हाट वी गॉट, r is equal to r dash. ओके. तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए. अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड नंबर. मैम अगर हम किसी और नंबर को किसी और. Now the next question is, a body A of mass m is thrown at an angle 30 degree with the horizontal, and the another body B is thrown at an angle 60 degree from the horizontal. यानी हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि an object A, this is suppose object A is thrown with any velocity with an angle 30 degree from the horizontal. Another object B is thrown by making an angle 60 degree with the same velocity from the horizontal. Then we have to calculate, हमें क्या find करना है, to find the ratio of the horizontal range of A and B and the maximum height attained by both the objects A and B.
ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वी नो दैट r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g एंड h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। डन, ये फार्मूले हमारे पास हैं। अब आते हैं 4 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थीटा 30 के लिए इसे सोल्व करेंगे तो r आ जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी। सही है, यानी u स्क्वायर अपॉन जी रिमेन सेम। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। सिमिलरली हम h निकालेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपॉन जी। ठीक है, यानी इसके अंदर थीटा की वैल्यू 30 कर दी तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन जी रिमेन सेम। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो 1/4। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली 49। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमने निकाल ली। किसके लिए निकाली? ए ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड आउट कर लिए 49। नाउ 4 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, आर बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी एंड आर एच बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 अपॉन जी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन जी रहेगा। जो साइन 120 की वैल्यू होती है वही होती है साइन 60 की है, √3 अपॉन 2। यहाँ पर यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। स्क्वायर करेंगे तो 3 अपॉन 4 आएगा। तो व्हाट वी गॉट, आर ए हमने फाइंड कर लिया, आर बी एच ए फाइंड कर लिया, एच बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें, आर ए और आर बी की रेशियो निकालनी है। तो 2 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन जी √3 अपॉन 2 and these are cancelling out 1. Similarly, HA ratio HB is equal to ये u square upon g cancelling out 1/4 upon 3/4 it is 4/4 cancel 1/3. Okay, तो in this way we can solve this question. तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और भी मैं वीडियो भेजता रहूँगा, कुछ ऑनलाइन क्लासेस में आप जरूर जुड़े, उसमें कराता रहूँगा। एंड ओके, नाउ थैंक यू।